So today we would learn chapter number 11, determiners. This topic we also learned in standard 6. So you can, if you want to watch that video for standard 6, so you can go on our YouTube channel and check it. Now in 7th class, chapter number 11 is that determiners. So what is extra thing is given in this standard? Let's see. So here one paragraph is given and color words are there: all, many, some, other. So these all called determiners. है ना? The word in colors are determiners. Determiners is used with a noun and restricts the meanings of the noun. It's give a meaning of noun. And it also restrict the meaning of noun. मतलब noun का जो meaning होता है उसको restriction देता है. जैसे कि हम कहीं पे लगाते हैं कि आई हैव मैनी मनी, तो ऐसा नहीं होता है आई हैव मच मनी. तो आपके पास कितनी मनी है उसका रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो डिटर्मिनस फिक्स करता है ना. तो इट्स रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ नाउन. तो नाउन का जो भी मीनिंग है, जैसे कि मनी इज ए नाउन, तो मनी आपके पास कितनी है, क्या है मनी, तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर उसको मीनिंग देता है. Determiners can be articles a, an and the. ये हमने 6 में देखा था. Numerals also first, second, third, fourth. Determiners. Possessive adjectives. Possessive adjective, not possessive pronouns. Possessive adjective. My, yours, her, their, his. These are called possessive adjective. These topics will learn in 5th class. Possessive adjective. Possessive pronouns क्या होते हैं बताओ, किसको पता है possessive pronouns? Who will tell? This is the possessive adjective. My, your, their, her, his. What is possessive pronouns? I, me, mine. His का his, hers, yours. S लगता है ना पीछे, सबके पीछे. It's called possessive pronouns. This topic we learned in 5th class. Possessive pronoun what we called, and possessive adjectives are his, their, her. This is called possessive adjective. Then quantifiers. Quantifiers also comes here. Some, few, any. Then demonstrative. Demonstrative we also learn in 6th class. Demonstrative मतलब these, that, है ना? Those, these. These are the demonstrative. Demonstrative मतलब कुछ दर्शाते हैं आपको. तो these are the determiners. You have to write down this part in your notebook. Okay? Determiners क्या है वो लिखना है. रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ नाउन. देन डिटर्मिनर्स को जो बाइफरकेट किया है आर्टिकल में, न्यूमेरल में, पॉसेसिव एडजेक्टिव में, वो भी आपको लिखना है. देन डिफरेंट बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव. तो यहाँ पे एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताया है. डिटर्मिनर्स लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन. डिटर्मिनर्स गिव द लिमिट मीनिंग ऑफ नाउन. नाउन को एक लिमिट मीनिंग देता है. मीनिंग तो देता है बट उसमें लिमिटेशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है. Most children like chocolates and these books are mine. Here two examples are given. है ना? तो difference between determiners and adjective. तो it's give the limit meaning. जैसे कि children तो है but कैसे children? Most children. तो most is a determiner. Then books जो है noun है. Books are mine, मेरी बुक्स है, बट कौन सी बुक? तो these books are mine. So it's give the limit meaning. Then determiners precedes the noun. That means Sohan achieved the first rank in the school. There is too much noise in this house. So it means it's also जो noun होता है उसे determiner मतलब उसकी न्यूमेरिकल जगह दिखाता है या फिर उसकी क्वांटिफायर्स बताता है कि कितनी क्वांटिफायर्स ये है. नॉइस कैसा है? तो मच नॉइस, बहुत सारा नॉइस है ना. तो इट्स ऑल्सो गिव दिस मीनिंग इज गिव्स बाय डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स समटाइम्स प्रीसीड्स एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को भी दिखाता है, जैसे कि एवरी रेगुलर स्टूडेंट्स वाज गिवन अ सर्टिफिकेट. एवरी. Here there are some new clothes. New clothes is an adjective. तो new clothes कैसे है? बट बहुत एक कम है, कैसे? Some new clothes.
ओके, तो इट्स ऑल्सो समटाइम्स प्रीसाइड्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे भी लगता है, प्रीसाइड्स मतलब उसके आगे यूज होता है। देन डिटर्मिनस प्रीसाइड्स द नाउन, नाउन के आगे भी यूज होता है, देन एडजेक्टिव के आगे भी यूज होता है। दे कैन बी यूज विथ ऑफ, ऑफ के साथ यूज होता है, जैसे कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर, सम इज अ डिटर्मिनर, है ना, तो ऑफ के साथ यूज होता है, दैट मीन्स सम ऑफ, व्हेन दे आर वर्ड देन, नन ऑफ देम, है ना, तो ऑफ के साथ भी वी कैन यूज डिटर्मिनर्स। ईदर, नीदर एंड बोथ आर यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, टू एक्शन एंड सो ऑन। जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं आइदर, नाइदर, एंड अगर दोनों की बात है तो बोथ, दैट यू नो, बट आइदर एंड नाइदर, और you can pronoun like that, pronouns is like that, either and neither also, okay, so either and neither is used to compare or tell about two persons, compare also about two person or thing. My friend did not have any money, neither did I, मेरे friend के पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। My friend did not have any money, neither did I. Then little and few indicates not much, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। लिटल एंड फ्यू दैट मीन्स होता है कि कुछ है नहीं, मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है, और इट्स अ नेगेटिव मीनिंग। और अ लिटल और अ फ्यू हैव मोर पॉजिटिव मीनिंग। तो ये आपको नोट करना है और आपको हर जगह पे याद रखना है, तो यू हैव टू रिवाइज दिस पॉइंट। फ्यू एंड लिटल, आगे अ नहीं लगा है। अगर इफ अ वर्ड इज गिवन ओनली विदाउट अ, लाइक ए के साथ नहीं दिया है, लिटल एंड फ्यू, तो इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं है, नेगेटिव सेंस में जाता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स दैट मीन्स आई हैव नो फ्रेंड्स। एंड अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, है ना, अ फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, ऐसा मैं बोलूँ तो पता चलेगा कि हाँ टीचर के पास थोड़े बहुत फ्रेंड्स है, तो इट्स अ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू एंड अ लिटल हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग एंड फ्यू एंड लिटल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। ओके, क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ओके, जैसे कि फ्यू एंड लिटल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग एंड अ फ्यू एंड अ लिटल, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो सेंटेंस देखते, देयर इज अ लिटल राइस एट होम, मतलब घर पे थोड़े भी राइस नहीं है, खत्म हो गए। फ्यू पीपल केम टू वॉच द प्ले, फ्यू पीपल मतलब नेगेटिव सेंस में, कोई भी प्ले देखने नहीं आया, इस मीन्स इज दैट। ओके, समझ में आ रहा है? शिवानी, दिव्या, सोहिल एंड सारो। Yes, ma'am. ओके, अब सेकेंड वन देखो, अ लिटल अ फ्यू हैव अ मोर पॉजिटिव मीनिंग, मतलब इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, मतलब कुछ है, बहुत सारा नहीं है बट थोड़ा तो है, कुछ तो है। यस, आई डू हैव अ लिटल राइस एट होम, मतलब मेरे घर पे थोड़े राइस तो है ही। अ फ्यू पीपल केम टू वॉच प्ले, मतलब कुछ लोग वॉच प्ले देखने के लिए आए थे, या फिर कुछ लोग खेलने के लिए आए थे। अ फ्यू पीपल कम टू द प्ले देखने के लिए आए थे, बराबर। तो दिस फ्यू, लिटल, अ फ्यू, अ लिटल, दिस ऑल आर डिटर्मिनर्स। ओके, ये सब डिटर्मिनर्स है। सम, एनी, फर्स्ट, सेकेंड, दिस ऑल आर डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स आर ऑल डिटर्मिनर्स। ओके, नाउ नोट ऑफ द डिफरेंस मीनिंग बिटवीन दिस टू सेंटेंस। लेट अस गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी, वी हैव अ लिटल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स, तो अ लिटल that means a positive meaning. Hurry, we have little time before the train arrives, it has a negative meaning. जल्दी करो, हमारे पास समय है ही नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं चलो थोड़ा कॉफ़ी पी के आते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है अ लिटल टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखो दीज कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे दिखाई है। सम ऑफ पीपल कैन गो होम, सम ऑफ दीज पीपल कैन गो होम, क्योंकि सम ऑफ के बाद डिटर्मिनर्स का होना जरूरी है। देखो ऊपर भी लिखा है सम ऑफ माई, एंड माई इज पजेसिव एडजेक्टिव, माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव यूज हुआ है।
some of these people, these मतलब it is the determiner, but which type of determiners? Demonstrative determiner. तो सम ऑफ के बाद डिटर्मिनर होना जरूरी है, डायरेक्टली नाउन नहीं आता है। यहाँ पे पीपल इट्स अ नाउन, सम ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा, डिटर्मिनर्स इज नीडेड देयर। आई वांट अ वाटर, ऐसा नहीं होता है, आई वांट सम वाटर, ओके, सम वाटर इज द डिटर्मिनर। नीदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग, नो, नीदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। क्यों ऐसा हुआ? चलो, हु विल टेल मी व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? क्योंकि बॉयज लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलो। Okay, let's look on this sentence. Neither of the friends are coming and neither of the boys is coming. So here you can see boys is used and boys is the plural form. So who will tell me why this sentence is correct? मैं बोलूँ? हाँ, बोलो। कि मैम यहाँ पे लिखा है नीदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग, मीन्स मैम कोई भी बॉयज नहीं आया है ना, कोई भी बॉय नहीं आया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसके साथ साथ नीदर जो है मतलब बताता है कि कोई भी नहीं आने वाला है, एक भी नहीं आने वाला है। दैट्स वाई बॉयज इज गिवन। तो आप तो क्या लिखोगे? बॉयज के बाद अगर आपको ब्लैंक दिए तो आप तो लिख दोगे कि बॉयज इज द प्लूरल फॉर्म, है ना दिव्या, है ना सोहिल? बॉयज इज द प्लूरल फॉर्म, सो यू हैव टू पुट ऑटोमेटिकली आर, बिकॉज आपको तो इतना ही दिखेगा ना कि बॉयज तो प्लूरल फॉर्म है, तो बॉयज के साथ तो आर ही यूज होगा, इस थोड़ी ना यूज होता है। नो, you have to check the sentence because here the sense is in negative form। नेगेटिव तो है ही और ये भी है कि नीदर मतलब कोई नहीं आएगा, कोई भी बॉय नहीं आएगा, है ना, इसके लिए ये सेंटेंस राइट है, दिस सेंटेंस इज ट्रू। Okay, now let's see exercise number 1. Underline the determiners in this sentence. Exercise number 1 मैं करवा देती हूँ. You have to do exercise number 2. Okay, and before learn this chapter, you have to watch that video which I have uploaded on the video of our YouTube channel for 6th standard determiners. Okay, all have to watch that video and then you have to do this exercise. Underline the determiners in these sentences. My sister is a librarian in this school. So these all are determiners. My, a and this. My is a which type of determiner? Who will tell? Positive active. Adjective. Yes. A is a easy one, article. And this is a which type of determiner? Demonstrative. Yes. Okay. Now next one. 4 young men got off the bus. Where is the determiners? We have to find out. 4 is the determiner. Yes. And the bus. So the is article in sense of determiner, right? So underline 4. No, 4 is also determiner. 4 means numeral determiner होता है ना, जो numeral होता है, तो 4 is also determiner and the is also determiner. 4 and the, okay, understood? In this sentence 2 determiners are given. One is numeral and second one is article. 4 and the bus. चलो third one. A few people turn up for the meeting.
ऑफ यू you एंड द. वेरी गुड. हो गया सोहेल. ऑफ यू इज अ डिटर्मिनर एंड द इज अ डिटर्मिनर. चलो ऑफ यू वो कौन से टाइप का डिटर्मिनर है बताओ. क्वांटिफायर है ना. क्वांटिफायर. चलो फोर्थ वन. आई हैव अ फीलिंग दैट नीदर ऑफ देम विल कम फॉर डिनर. सीमा को आंसर देना है. सारव को, दिव्या, सोहेल. यू डोंट हैव आंसर्स. चलो बोलो आंसर बताओ. सारव बोलो. चलो फोर्थ वन का आंसर. आई हैव अ फीलिंग दैट नीदर ऑफ देम विल कम फॉर डिनर. सारव. सारव, दिव्या, सोहेल. अनम्यूट योर स्पीकर्स एंड गिव आंसर. तो ये लोग कहाँ हैं सब लोग. वेयर आर यू सारव. सारव. यस मैम. क्या यस मैम. अभी तक कहाँ थे. कब से मैंने आपको कहा कि आंसर दो. सारव, वेयर आर यू. ओके. चलो बताओ. व्हाट आंसर विल कम एज अ डिटर्मिनर. मैम आई. What I? I is a determiner. I is a subject. That means you are not learning properly. चलो बताओ. ए मैम. And then मैम and that. and that. No. इसमें मुझे 2 मिनट. नहीं. गलत. Of. Okay. I have a feeling. I have a feeling. I have a feeling that neither of them. तो neither of को क्या किया. of के साथ डिटर्मिनर यूज होता है. वो तो हमने पहले पढ़ा. तो I have a feeling that neither of them will come for dinner. So answer is a and neither of. A and neither of. Last fifth one. Both the sons are studying abroad. मैं आंसर बोलूं. बोलो. बोथ. ओनली बोथ आएगा क्योंकि बोथ जो है ना वो मीनिंग आपको दे रहा है किसका. द सन्स का. द सन्स मतलब 2 सन हुए है ना. उसका मीनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको. डिटर्मिनर. कौन सा डिटर्मिनर है. बोथ. बोथ इज गिव एंड डिटर्मिनर्स आर रिस्ट्रिक्ट द नाउन. वो लिमिटेड मीनिंग देता है. तो द सन का मीनिंग क्या है. तो बोथ. बोथ इज ऑल्सो सेंस ऑफ 2 लोग के लिए होता है ना यूज. बोथ. तो यहाँ पे भी लिखा है सन्स. तो बोथ ओनली एज द डिटर्मिनर. देन एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू द एजुकेशन. टू एजुकेशन. सॉरी. एवरी एंड द. ओके. Now your homework is you have to complete your exercise number 2. Okay. And send me on my number on my WhatsApp. Okay. Thank you. We'll meet tomorrow with this topic with further exercises. Okay. Chalo. Bye bye. बाय मैम.